in the previous classes. That is the revision of that. I think so. Except the biogas plant and biogas energy was a new concept, as we have not seen in the solid waste management, right? So otherwise, everything is like a revision to you all. That's a very nice session which has happened yesterday. So today we'll start a new topic, and that is the biomedical waste. So this is a last topic of this syllabus, but we have not covered the industrial waste. After this, we'll cover this industrial waste. So currently, I'm taking this topic of biomedical waste. So in this, we'll see definition, sources, classification, then how the management of all the biomedical waste is happening. That we'll see in this topic. Right. Let's go with the introduction part. So, waste generated in the diagnosis, treatment, or immunization of a human being or animal in research or in the production or a testing of a biological product. It also includes a waste coming out of a medical treatment given at a home. तो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीज इसमें कवर कर दी गई है। तो जितने भी आपके एक्टिविटीज हैं आपके मेडिकल के अंदर में, तो सारी की सारी आपकी बायोमेडिकल कहलाएगा, और जो उसमें से वेस्ट जनरेट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज अ बायोमेडिकल वेस्ट. If we classify this biomedical waste, then it can be in two forms. One is known as a non-hazardous waste, other is a hazardous waste. If we see the percentage wise, so the percentage wise the composition is 75 to 90%, and in hazardous waste it is a 10 to 25%. Now again, this hazardous can be bifurcated into two parts. One is known as infectious, and another is known as other hazards. So in infectious is 15 to 18%, whereas other hazards are 5 to 7%. Okay, so in infectious, there are several categories like non-sharp, sharp, plastic, disposable, liquid waste, and other hazards, radioactive waste, discarded glasses, pressurized containers, chemical waste, cytotoxic waste, incinerator ash. This will be the your hazardous substances. Now, what is the need of the biomedical waste management in hospitals? ये जरूरत क्यों है? Why it is very important? Reason क्या है इन सब चीजों की? Reason due to which there is a great need of a management of hospital waste, such as क्या major league इसमें आता है? Important क्या है कि injuries from a sharp bleeding to infectious to all category of hospital personnel and waste handlers. Your nosocomial infections in a patient from poor infection control practices and poor waste management. Risk of infections outside hospital for waste handlers and scavengers, and at a time general public living in the vicinity of the hospital. Risk associated with the hazardous chemicals, drugs to person handling waste at all levels. Disposable being repacked and sold by unscrupulous element without even being washed. Drugs which have been disposed of being repacked and sold off to unsuspected buyers. Risk of air, water, and soil pollutant directly due to waste or due to a defective incineration, emission, and ash. अगर मैं इन नटशेल अगर मैं बात करूँ सभी पॉइंट को एक साथ में सम अप करने की कोशिश करूँ, so what we are trying to say कि जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो आपके कोई भी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर management for the handling, collection, segregation, transportation, and disposal of the biomedical waste. So, और जिसकी वजह से ये आपके environmental को या harm ना हो. So that this is the reason why this biomedical waste is important. Now, if you see the biomedical waste, then again, जैसे हमने पहले देखा था उसी के और थोड़ा सा extended version diagram दिख रहा है. Whereas you can classify in two ways. One is known as a non-hazardous waste, another is a hazardous waste. अब थोड़ा सा ये आपको कहीं कहीं आपको जो परसेंटेज है कहीं कुछ कम ज्यादा दिखेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे देखिए नॉन हजार्डियस 75 to 90%, ये एक जगह से ये एक सोर्स से लिया है, वेयरएज ये मैंने दूसरे सोर्स से लिया है जहाँ पे बोला गया है कि 75 से 85%. So no need to confuse about these things. That is a plus minus 5% so to source ये changes हो जाते हैं. Then hazardous waste is a 15 to 25%. So अगर मैं नॉन hazardous waste की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो उसमें आएगा आपका लेफ्ट ओवर फूड्स आएगा, पेपर कार्टून्स आएगा, फ्रूट पील्स आएंगे. तो ये हो गया आपके नॉन hazardous waste. Whereas hazardous waste में आएगा आपका potentially contagious waste which is of a 15 to 18%, and potential toxic waste which is a 5 to 7%.
अभी इसी का नाम देखिए कुछ और है, ये यहाँ पे इन्फेक्शियस बोल दिया और यहाँ पे अदर हजार्ड्स करके बोल दिया। ठीक है, इन्फेक्शियस इन दिस अदर हजार्ड्स। इन्फेक्शियस में क्या आएगा आपका, ड्रेसिंग एंड स्वैब से आ जाएगा, लेबोरेटरी वेस्ट आ जाएगा, इन्फेक्शियस और पैथोलॉजिकल वेस्ट आएगा, शार्प एंड प्लास्टिक्स आ जाएंगे, ये इसके आ जाएंगे इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर में। वेयर अदर हजार्ड्स में आएगा आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल वेस्ट एंड जेनोटॉक्सिक एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। सो हमारे बायोमेडिकल का सोर्सेस क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्सेस क्या है, तो जहाँ पे इसको ज्यादातर यूज करते हैं तो वहीं हम बोलेंगे कि दैट इज द मेजर सोर्सेस। सो व्हाट आर द मेजर सोर्सेस, वी कैन क्लासिफाई इन टू वेज, वन इज नोन एज द प्राइमरी वन एंड अदर इज अदर सोर्सेस। सो प्राइमरी में जब बात करते हैं तो मेडिकल से रिलेटेड है तो कौन सा आएगा, सबसे पहले हॉस्पिटल ही आएंगे, देन क्लिनिक आएगा, देन नर्सिंग होम आएगा, देन डिस्पेंसरी और आपका ब्लड बैंक आएगा। तो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, तो जैसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो इसमें वेटरनरी भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, राइट। सो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। वेयर एज अदर सोर्सेज में हम बात करते हैं तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है और मेडिकल एजुकेशन भी होता है। There are so many research centers, medical research centers, household हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गया, तो ये हो गया आपके अदर सोर्सेस। नाउ अगेन अगर हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम किस तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं, सो यू कैन क्लासिफाई इन 9 टाइप्स, लाइक इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, शार्प्स हो गया, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, जेनोटॉक्सिक वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, देन वेस्ट विद हाई कंटेमिनेटेड हेवी मेटल्स हो गया, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। सो दीज आर द classifications of the waste. Now there is the rules for biomedical waste handling, for handling of biomedical waste, ये rules बने हुए हैं। तो क्या ये rules क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटैक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, ओके 1986 में आया, नोटिफाइड द रूल फॉर द मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन जुलाई 1998। अब देखो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट का जो एक्ट हमने बनाया है दैट इज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग पार्ट, वो आया आपका 1998 में। सो अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, एज पर दिस रूल इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ, ऑक्यूपायर यानी कि जो उसको चला रहा है, किसको, हॉस्पिटल को, नर्सिंग होम को, क्लिनिक को, डिस्पेंसरी, वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स, animal houses, blood bank, pathological laboratory to take all the steps ensure that biomedical waste is handled without adverse effect to human health and environment। ठीक है, ये सारे जो रिक्वायरमेंट, सारी जो जिम्मेदारी है ये किसकी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, ऑक्यूपायर्स। कौन ऑक्यूपायर्स हैं, जो ये आपके वेरियस इंस्टीट्यूट्स को रन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये बायोमेडिकल वेस्ट से आपका कोई भी नॉर्मल पर्सन आपका अफेक्टेड ना हो। बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट टू बी मिक्स विद अदर वेस्ट, आप इस वेस्ट को किसी भी वेस्ट के साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रेगेटेड इन ए स्पेसिफाइड कंटेनर बैग एट द साइट ऑफ द जनरेशन। आपको जहां पे भी इसका जनरेशन हो रहा है वहीं पे उसको आपको सेग्रीगेट करके रखना है। सेग्रीगेट करने के भी रूल्स है, वो आगे वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। ईच कंटेनर हैज टू स्पेसिफिकली लेबल्ड, हर एक कंटेनर पे लेबलिंग होना जरूरी है कि इस कंटेनर के अंदर क्या आपका सब्सटेंस रखा है, क्या सब्जेक्ट रखा हुआ है, या आपका क्या मटेरियल है, वो उसमें पता होना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच वेस्ट हैज टू बी डन इन ए स्पेसिफाइड व्हीकल ओनली, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल व्हीकल ही यूज होना चाहिए। इन जनरल जहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूज हो रहा है वहीं पे हम इसको यूज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी अ सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। Untreated biomedical waste is not to be stored beyond a period of 48 hours, क्योंकि biomedical waste में it is a pathogenic, it is डिग्रेडेबल आपका मटेरियल है। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो डिके होना शुरू कर देगा और एक बैड स्मेल भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, सड़ना शुरू कर देता है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर टू कीप आफ्टर 48 hours. So in biomedical waste there are 9 major category. So category wise you can see category 1 to category 9, whereas a description of this category is also given, whereas in other column the how this can be treated, that is also given there. If we say about category 1, so this is a human anatomical waste,
ह्यूमन एनालिटिकल वेस्ट यानी क्या बोलते हैं कि जिसमें ह्यूमन टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गया, जनरली जो आपके ओटी से निकलता है। तो ऐसे जो भी वेस्ट रहेगा उसको आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, डिस्पोज कैसे करोगे? इट्स सिंपल, आप एक ही कर सकते हो, उसे इंसिनरेट कर दो या उसे कहीं जमीन में गाड़ दो। दिस इज द ओनली वे। नो, सेकंड कैटेगरी इज एनिमल वेस्ट। जब एनिमल वेस्ट की बात करें तो एनिमल टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया, देन सड़े मतलब कहीं बहुत दिनों से पड़ा हुआ आपका एनिमल बॉडी पार्ट है या उसकी बॉडी है, ब्लीडिंग पार्ट्स, फ्लूइड, then blood and experimental animals used in a research, waste generated by veterinary hospital, colleges, discharged from hospital, animal houses. So these are all a description of animal waste. क्या क्या उसमें आएगा? तो ये भी आप ज़्यादा 48 आवर्स से ज़्यादा उसको आप रख नहीं सकते हो, you have to be dispose of. तो this is the only method for the disposal of this, that is incineration and a deep burial. Okay, then category number 3. So microbiology and biotechnology waste. Okay, again, waste from a laboratory culture, stock of a specimen of a microorganism, live or authenticated vaccination, human and animal cells culture, used in a research, infectious agent from a research, from industrial laboratory, waste from a production of a biological toxin dishes, and devices used for a transfer of a cultures. So all these will be treated by this. ये कैसा है, अब इसको इंसिनरेट कर लो या माइक्रोवेविंग कर लो या इसे ऑटोक्लेविंग कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। इसे बरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं दफनाने की जरूरत नहीं है। इस कैटेगरी 4, तो इसमें आएगा आपका वेस्ट शार्प। शार्प जब बोलते हैं तो जनरली जो ओटी में होते हैं आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी चीजें आती है, जिसमें नीडल आ गया, सिरिंज आ गया, स्कैपल्स आ गया, ब्लेड्स आ गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा, दैट मे कॉज अ पंचर एंड कट्स। अगर किसी को कहीं भी ओपन रखा होगा तो किसी का हाथ लग गया उसको, अगर किसी को लग गया तो आपके हाथ में पंचर हो सकता है, यानी कि आपको ब्लडिंग निकल सकता है, कहीं कट लग सकता है। तो दैट इज अ डेंजरस शार्प एजेस होने के कारण। सो दिस इंक्लूड बोथ यूज एंड अनयूज शार्प। तो इसको भी हमें अगर डिस्पोज ऑफ करना है या आपको ट्रीटमेंट करना है तो डिसइंफेक्शन करने की जरूरत है। तो डिसइंफेक्शन आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो या ऑटोक्लेविंग कर सकते हो या माइक्रोवेविंग कर सकते हो, ये उसके तरीके हैं डिसइंफेक्शन करने के। देन आप उसको मल्टीलेशन और श्रेडिंग में भी इसको डाल सकते हो या आप उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके उसको वॉश करके डिसइंफेक्ट करके दोबारा से उसको मतलब रिसाइकल कर सकते हो। Then next is category 5. Discarded medicine and cytotoxic drugs. Waste comprising of outdated, contaminated and discarded medicine. जो वेस्ट जो मेडिसिन आपका आउटडेटेड हो गया है, ऐसे वेस्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिसको डिस्कार्डेड हम बोलते हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन। और या फिर आपके जो ड्रग्स है, जो आउटडेटेड ड्रग्स है या जो पॉइजनस है, उसको हम साइटोटॉक्सिक बोलेंगे। So the best part is the incineration कर लो या destruction and drugs disposal in a secure landfill। आप secure landfill के थ्रू भी इसको आप dispose of कर सकते हो। Then next is a category 6। So यहाँ पे simply solid waste बोला हुआ है। तो यहाँ पे जो items आएंगे, item contained with a blood and a blood fluid, including a cotton, dressing, soil, plaster, then lines, beddings, other materials contaminated with the blood। सो बेसिकली ब्लड वाली चीजें दी जा रही है, जो कि आपके कॉटन हो गया, बेडशीट हो गया या आपका पिलो हो गया या आपके कपड़े हो गए या कुछ और आपका कहीं पट्टी वट्टी बांधा अपन ने, बैंडेज हमने किया, तो ये सब चीजें में ये आ जाता है, विच कैन बी डिस्पोज ऑफ यूजिंग इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग। नेक्स्ट कैटेगरी 7 इज अ सॉलिड वेस्ट, वेयर एज इस कैटेगरी में हम बोलते हैं कि वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम disposable item other than the waste sharp as such as tumbling catheters, the intravascular sets। तो ये जो होंगे इसको भी आपको डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा, ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग कर सकते हो, द मल्टीलेशन और शेडिंग में आप ये कर सकते हो। Then category 8 is a liquid waste, so waste generated from a laboratory and a washing, cleaning, housekeeping and disinfection activity। so इसको सिंपली डिसइंफेक्टेड करने की जरूरत है, या उसका जो वाटर निकलेगा लिक्विड है ना, तो ये वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उसको आप इसको ड्रेन में डिस्चार्ज भी कर सकते हो। लास्ट कैटेगरी इज कैटेगरी 9। सो इंसिनरेशन एश फ्रॉम द इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट। कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट का जो एश रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिक्योर लैंडफिलिंग के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सो दिस आर द वेरियस कैटेगरी, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसको ट्रीटमेंट डिस्पोजल दिया हुआ है। नाउ
What are the steps in the management of a biomedical waste? कौन कौन से steps हैं जो हमें biomedical में consider करना चाहिए? It is just parallel to the municipal solid waste. It is just parallel to hazardous waste. इसमें भी हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वे ऑफ ए वेस्ट जनरेटेड, जो हमारे पास में वेस्ट जनरेट हो रहा है, किस टाइप का वेस्ट है, उसका हमें सर्वे करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन हॉस्पिटल वेस्ट. जो आपके हॉस्पिटल में वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको हमें सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेट करके कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट. अगर कोई बोलेगा कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट और कलेक्शन ऑफ ए कैटेगरी ऑफ ए वेस्ट, yes, approximately both are same, but there is a slight difference. But हम अगर in general बोले तो दोनों एक ही चीज है. The next is a storage of a waste not beyond 48 hours, that we have to be take a point. The next is a transportation of a waste. Then last one is a treatment of waste. Then again this is a complete cycle. आपको कहीं कुछ flaws दिखता है, कहीं कुछ गलतियां दिखती है, तो again you can make a survey of waste generated. So in this you can see it's a collection of a segregation. It's a collection of collection of waste segregation. तो अब ये देखो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स के आपको डस्टबिन दिखेंगे. लेट अस स्टार्ट विद दिस, जिसमें ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है. अब ये हर कलर का कुछ तो भी सिंबल है, ठीक है, ये कुछ सिंबॉलिक है कि इसमें कौन सा वेस्ट आना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब इसमें आपको बताया जाता है. सो अगर हम देखें, जब ब्लैक कलर अगर है, आपने ये जनरली देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो नॉर्मल जहाँ पे आपका रिसेप्शन सेंटर है या जहाँ नॉर्मली बैठते हो या डॉक्टर के कैबिन के बाहर में आप देखोगे तो वहाँ पे एक डस्टबिन रहेगा जिसमें ब्लैक पॉलिथीन रहती है, ठीक है. दिस इज अ नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट. तो साइटोटॉक्सिक डस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, तो या कुछ भी जनरल वेस्ट हो गया तो आप इसमें डाल सकते हो. तो इसलिए वो आपको जनरली ब्लैक पॉलिथीन में आपको कवर करके दिखेगा, ठीक है. सो इसको जब डिस्पोज ऑफ करना है तो जैसे सिंपली केमिकल ट्रीटमेंट करके सेक्योर लैंडफिल हम कर सकते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल वन. वेयर एज द अदर 4 आर फॉर द इन्फेक्टेड वेस्ट. इन्फेक्टेड वेस्ट में किस तरह से, अगर आपको सॉलिड वेस्ट है, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, पॉपअप कास्ट अगर है, तो आपको उसे रेड कलर के कंटेनर में ही डालना है. आप बोलोगे मैं येलो में डालूंगा या डालूंगी, नो, दैट इज नॉट अलाउड. It is not allowed to put in the blue. It is not allowed for the put in the white, because every color is indicating something else. तो अगर आपका infectious dressing अगर होगा तो उसे आप रेड कलर के डस्टबिन में ही डालना चाहिए. दैट, और उसका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको ऑटोक्लेव करेंगे और उसके बाद में उसे कहीं पे क्या बोलते हैं, डीप बरीड कर सकते हैं या उसे गाड़ सकते हो, ठीक है. So this is the for the this infectious dressing and pop-up cast. If you see a next one, this is a anatomical waste. Anatomical waste मतलब क्या होता है कि आपका प्लेजेंटिया हो गया, आपका पैथोलॉजी वेस्ट हो गया या बॉडी पार्ट्स हो गया, तो आपका ये येलो कलर के इसमें ही जाना चाहिए. तो आप उसको क्या कर सकते हो, या तो इंसिनरेट कर सकते हो या फिर आप उसे डीप बरल भी कर सकते हो. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर दिस एनाटॉमिकल वेस्ट. Now, next is infected plastic syringe, gloves and plastic waste. तो ये हम उसको ब्लू कंटेनर में डालेंगे, जिसको आप ऑटोक्लेविंग करके, डिसइंफेक्टेड करके या क्लोरीन सोल्यूशन से साफ करके आप उसको फिर से वेंडर के पास दे दीजिए, उसे वो रिसाइकल कर लेगा. The next is a sharp needle and cut glasses. So this is the next your डस्टबिन, जहाँ पे आपके जो ओटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, स्कैपल्स हो गया, ब्लेड्स हो गए या आपके सिरिंज हो गए, तो वो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो व्हाइट प्लास्टिक कंटेनर में. और जो शार्प है आप उसको मतलब कहीं पे उसको दोबारा से यूज करने के लायक या उसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ करने के लिए फर्दर इसको यूज कर सकते हो. सो इन सब के लिए भी एक कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी हम एक अगर हमें प्रोवाइड करना है हॉस्पिटल लेवल पे तो भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप. ये सबसे पहला स्टेप है. दिस वुड इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, दैट इन्फेक्शियस वेस्ट डू नॉट गेट मिक्स विद द नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट. आपका इन्फेक्शियस वेस्ट नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए, उसलिए वो सेग्रीगेशन कर रहे हैं हम लोग. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए वेस्ट जनरेटेड बाय ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इज एक्चुअली इन्फेक्टेड infectious or hazardous. Okay, it is estimated that 80 to 85% is a non-infectious, 10% is infectious, and 5% is a hazardous. Segregation of a waste into infected or a contaminated waste and contaminated waste and non-infected waste is mandatory
and is the prerequisite for a safe and hygiene waste management. बहुत क्लियरली शब्दों में कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन आपका फर्स्ट स्टेप है. आपको ये मिक्स नहीं करना है किसी भी वेस्ट के साथ में. इट विल बी हेल्पफुल फॉर द मेंटेनिंग द हाइजीन कंडीशन इन योर प्रीमाइसेस, इन योर हॉस्पिटल एंड अदर नर्सिंग, जो भी आपका है जहाँ पे भी आप वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको ये सेग्रीगेशन पार्ट जो है हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने में काम करेगा. सेग्रीगेशन एट द सोर्सेस make it easier to prevent the spread of infections, help it easier to choose among the options of a disposal. Segregation एक बार हमने किया तो हम उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है वो हम इजीली और बहुत क्विकली हम डिसीजन ले सकते हैं. तो अगर हम सेग्रीगेशन एट द सोर्स ही कर लेंगे तो हम उसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर एक पाथ दे सकते हैं. कैन रिड्यूस द लोड ऑन द वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम एंड प्रिवेंट इंजरीज. अगर हम सारे वेस्ट को मिक्स कर देंगे तो हमें डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हमारी बढ़ जाएगी. अगर हमने इसको सेग्रीगेट करके रखा है, सोर्स लेवल में सेग्रीगेट कर दिया है, तो उसको जो ट्रीटमेंट कॉस्ट लगना चाहिए था एक्स्ट्रा का, दैट विल बी ग्रेटली इट विल बी रिड्यूस्ड. सो नेक्स्ट इज द कलेक्शन. सो व्हेनेवर वी डू कलेक्शन, सो आपको लेबलिंग करना बहुत जरूरी है. आपको कोई भी कंटेनर के ऊपर में लेबलिंग, अगर ये आपका बॉडी पार्ट वाला है तो बॉडी पार्ट वाला, अगर ब्लड वाला है तो ब्लड वाला, ड्रेसिंग वाला है तो ड्रेसिंग, मतलब उसमें आपका लेबलिंग होना इज मैंडेटरी. ऑल बैग्स एंड कंटेनर शुड बी मार्क्ड विद अ बायोहजार्ड सिंबल. ठीक है, जो भी आपका हजार्डियस बायोमेडिकल हजार्डियस मटेरियल है तो उसमें आपका ये जो सिंबल है ये आना ही चाहिए. ठीक है, इसको बोलते हैं बायोहजार्ड सिंबल. ओके, और ये आपका साइटोटॉक्सिक हजार्डस का सिंबल. ठीक है, डेल्टा के अंदर में ये सी है. सो दिस इज ऑलवेज इट शुड बी हैंडल विद केयर. तो कहीं पे भी आप देखो हजार्डस के नीचे आपको सिंबल में लिखा रहेगा हैंडल विद केयर. सो जहाँ पे भी आप कलेक्शन करो वो लेबलिंग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर एज अगर हम हमारे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस तो वहां भी लेबल होना जरूरी है. तो जनरली उसको हम शेड्यूल 4 करके बोलते हैं, टेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स बैग, जिसमें डे लिखा होगा, मंथ लिखा होगा, ईयर लिखा होगा, डेट ऑफ जनरेशन क्या है वो लिखा होगा, देन वेस्ट जनरेशन नंबर क्या है, क्लास क्या है उसका, उसका वेस्ट का डिस्क्रिप्शन उसके अंदर में क्या है, वो कौन उसको भेज रहा है, उसका रिसीवर कौन है, और अगर मान लो कोई इमरजेंसी केस होता है तो हमको किसको कांटेक्ट करना है. तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपका लेबलिंग में होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ये आपके पास में रहना चाहिए. Now there are some points which come under the transportation is like untreated biomedical waste shall be transported only in specially designed vehicle. आप इसको कोई भी व्हीकल XYZ व्हीकल में आप इसको ले जा नहीं सकते हो. आपको इसे एक पर्टिकुलर व्हीकल में ही ले जाना पड़ेगा. कभी आपने ऐसा देखा है कि आपका जो म्युनिसिपैलिटी का वो जो डब्बा है या ट्रक है वो कभी हॉस्पिटल के पास में आके खड़ा हुआ है? ऐसा नहीं होता है. कभी भी जो भी आप बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जा रहे हो देन व्हीकल शुड बी क्लोज्ड इन ऑल रिस्पेक्ट. इवन उसका जो ओपनिंग है वो आपके जो ड्राइवर है वहां भी नहीं आना चाहिए. इट विल बी अ कंप्लीटली क्लोज कंटेनर, ऐसा होना चाहिए. The waste should be transported from treatment either in trolleys or in a conveyed with a wheelbarrows. Manual loading should be avoided as far as possible. मैनुअल लोडिंग हमेशा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. बट एनी हाउ हम डेवलपिंग कंट्री में है तो अभी तक हमारे यहाँ पे वही सिस्टम चालू है. प्लास्टिक पॉलिथीन भी हमने फिलअप किया तो हाथ से उठाया और हाथ से फेंक दिया उसको. इसी तरह से हम लोग हमारे इंडिया में भी हम लोग उसको कैरी कर रहे हैं. द बैग्स कंटेनर कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी टाइड लिफ्ट बिफोर अ ट्रांसपोर्टेशन. यस ऑफ कोर्स, आपका जो भी आप कंटेनर हो, बैग हो, उसको जब भी आप यूज करोगे वन पॉइंट से अनदर पॉइंट वो हमेशा क्लोज रहना चाहिए. प्लास्टिक बैग है तो टाइट रहना चाहिए, और अगर उसका ढक्कन वाला है तो वो उसको लिड हमेशा लगा रहना चाहिए, लिडेड रहना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमेशा क्लोज कंडीशन में रहेगा. अदरवाइज क्या होगा, जो भी स्मेल है, जो भी ऑर्डर है, बैड ऑर्डर्स है, वो बाहर निकलेगा, वो इन्फेक्शियस आपको माहौल बना देगा, अनहाइजेनिक कंडीशन बना देगा. सो दैट इज वेरी डेंजर. अगर आपको एक्सपीरियंस कभी करना है तो आपके सामने से, कभी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, कभी आपके सामने से अगर वो जो व्हीकल रहती है वो अगर गई, अगर जिसमें आपके हैंड्स, आपके जो मुर्गियां रहती है उसको लेके जाते हैं, तो कभी उसके पीछे आप ट्रैवल करके देखो. इट इज वेरी मतलब वेरी इरिटेटिंग स्मेल इज देयर.
तो वैसे ही अगर हमने उसको क्लोज कंटेनर में नहीं लेगा तो वैसे ही एक इरिटेटेड स्मेल प्रोड्यूस होगा. Before transporting the bag containing biomedical waste, it should be accompanied with a signed document by a nurse or doctor mentioning that shift quantity and designation. Yes, of course. जैसे ये है सेंडर नेम एंड एड्रेस में किसका आना चाहिए, वो आपके नर्स का नाम या डॉक्टर का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए. Somebody who is taking the responsibility of that. Special vehicle must be used so as to prevent access to and a direct contact with the waste by the transportation operation, the scavengers and the public. Okay. The transport container should be properly enclosed. Yes, of course. आपका जो ट्रांसपोर्ट कंटेनर है वो हमेशा क्लोज होना चाहिए, ढका होना चाहिए. The effect of a traffic accident should be considered in the design and the driver must be trained in the procedure he must follow in case of an accidental spillage. The effect of a traffic accident should be considered. आपको ये पहले से ही मतलब एस्टिमेट करके रखना चाहिए कि अगर इस तरह से एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, एक्सप्लोजिव है, ब्लास्टिंग है, क्या होगा, या सब जमीन में फैल जाएगा. इन द डिजाइन एंड द ड्राइवर मस्ट बी ट्रेन, और ड्राइवर भी ट्रेंड होना चाहिए. उस सर अगर मान लो सब इधर उधर फैल गया है, बिखर गया है, तो उसको समेटना आता आना चाहिए, उसको विद प्रॉपर प्रिकॉशन उसको समेटना आना चाहिए. He must follow in the case of an accident and spillage. It should also be possible to wash the interior of the container thoroughly. That is very very important. ये हमारा जो कंटेनर है वो थॉरली बेसिस में वॉश होता रहना चाहिए, मेंटेनेंस उसका बराबर रहना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट. जो हमारा जो मैनेजमेंट है, देखिए हमने यहाँ पे सेग्रीगेशन पार्ट पढ़ लिया, कलेक्शन पार्ट पढ़ लिया, स्टोरेज हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया एंड ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया. बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी ये सब हम देख रहे हैं. और इम्पोर्टेंटली जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है वो इसके बारे में ज्यादा पूछेगा, कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपको ये बैग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई थिंक फॉर टुडे लेक्चर